On behalf of KKWA Polytechnic Nashik and Department of Computer Technology, I take this opportunity to welcome our today's resource person, Mr. Ankit Roser Martin, who is with us to conduct this expert lecture on topic game designing. Welcome you, sir. I also welcome to Mr. Nirmalesh Verma, sir, the director of MAC, that is Maya Academy of Advanced Cinematic Raipur, and naishiksha.com, as well as I would like to welcome Srishti ma'am, Akanksha ma'am, Shivendra sir, Twinkle ma'am, and us. Now it's my honor to invite Ankita in animation from London, Cambridge, and he is currently working as faculty at MAC Raipur, Chhattisgarh, and naishiksha.com. He has more than 15 years of experience in this profession, and he is an expertise in 3D journalist and specialized in game development. Once again, I welcome the whole team of MAC Raipur for coordinating this activity with us. Now, I kindly request sir to proceed further and please start the lecture on topic game designing. Thank you. Hello, everybody. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Hemant sir. All right, guys. As ma'am has given my introduction, definitely I'm currently a faculty at MAC Raipur and naishiksha.com, where I will be, where I am providing my expertise from past 3 to 4 years. I have started this career as a game designer from 2009 when I had created my first game, and I had, you know, went for a London Cambridge University animation so that I could, learn how to design this game. So game होते क्या है basically? Game are basically interactive softwares. इनको interactive softwares बोला जाता है, where you can interact with the software on a runtime basis. आप runtime के through जब आप directly game open करते हैं, आप continuously उसके साथ interact कर सकते हैं. This is basically interactive software development is also a game abbreviation. So, not further ado, let's start on how to build or how to develop a video game. Okay, I'm gonna share my screen. Okay, so this is my portfolio. Basically, when I started working on a game, I was thinking कि किस तरीके से गेम बनता है. सबसे पहले इसमें क्या प्रोसेसेस होती हैं. When I started, I didn't not knew about that. कि मुझे पता ही नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करते हैं. मुझे लगता था कि गेम्स क्रिएट करना बहुत ही मैजिकल चीज है कि जिसको अचीव ऐसे नहीं किया जा सकता. बट बेसिकली अगर आपको राइट टूल्स पता हो तो इट बिकम्स रियली इजी. सो मैंने जब शुरुआत की तो मैंने ज्यादातर अपना काम डिजाइनिंग में किया, जिसमें आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, बिकॉज वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. लेटर ऑन when I got my degree on BCA, then I get to know कि कोडिंग पोर्शन भी इसमें बहुत ज्यादा होता है. ओके, सो ये मेरे कुछ आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने प्रीवियसली किए हुए थे. दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट आर्ट. ये कॉन्सेप्ट आर्ट हैं गेम्स के लिए बेसिकली. तो सबसे पहले गेम जब बनता है तो उसमें आपको 3 मेजर प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है. व्हेनेवर यू स्टार्ट अ गेम, आपको जब भी गेम बनाना होता है तो शुरुआत में ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं बेसिकली. तो ये जो 3 प्रोसेस होती हैं, ये होती है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. ये 3 प्रोसेसेस होती हैं. लेट मी जस्ट शेयर अ सॉफ्टवेयर विथ यू गाइस. राइट, दिस इज फोटोशॉप. फोटोशॉप जो है वो बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, सब कोई सुनते हैं, बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है इस फील्ड में बेसिकली. लेकिन ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है. एज यू कैन सी कि फोटोशॉप जो है वो बाकी फील्ड्स में तो काम करता ही है, बट गेमिंग लाइन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट आर्ट्स एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोना शो यू हाउ दिस थिंग, और ये प्रोसेस क्या होती है. तो बेसिकली एट द स्टार्ट
जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है प्री प्रोडक्शन। ओके, प्री प्रोडक्शन बेसिकली ये प्लानिंग का सेक्शन होता है जिसमें आप गेम की प्लानिंग करते हैं। आप सोचते हैं कि गेम में क्या क्या होगा, क्या कैसा एनवायरनमेंट दिखेगा। जनरली जब हम कंपनीज में वर्क करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में वर्क करते हैं, गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज में काम करते हैं, तो वहां पे अलग से ही इसके लिए आर्टिस्ट तय किए जाते हैं। ये आर्टिस्ट होते हैं कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होते हैं इनका काम होता है डिजाइनिंग का। ये पूरा काम जो है वो डिजाइनिंग में ही अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगाते हैं। तो जो गेम हम बनाने वाले हैं आज, जो गेम हम परस्यू करने वाले हैं, बेसिकली इस गेम को हम एक पॉइंट एंड क्लिक जॉनरा में देखते हैं। ओके, सो ये जो गेम है ये बेसिकली पॉइंट एंड क्लिक गेम रहेगा, जिसमें आप अपने कर्सर का यूज करके आप एनिमीज को मारेंगे, उसके थ्रू वर्क करेंगे। सो शुरुआत में, सो व्हाट आई वाज टेलिंग पीपल कि जो प्री प्रोडक्शन सेक्शन होता है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से एक डिजाइन आर्टवर्क क्रिएट करते हैं, जिसका यूज करते हैं हम फिर गेम डेवलपमेंट के लिए। तो शुरुआत में जनरली ये शुरुआत होती है एक नॉर्मल स्केच से। सो मैं इस गेम के लिए जो कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ बेसिकली एक जंगल एनवायरनमेंट लेंगे, हम एक जंगल एनवायरनमेंट में क्रिएट करेंगे और इसके लिए जो कैरेक्टर होगा वो दिखेगा बहुत बबली सा, क्यूट सा कैरेक्टर लेंगे बेसिकली। बिकॉज नाउ डेज अगर आप बात करें तो गेम के जो जॉनरास हैं वो धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। नॉर्मली अगर आप बात करते हैं कि पहले जो गेम्स आए थे, आई थिंक आप में से कई कई लोग होंगे जिन्होंने हार्डकोर गेमिंग्स की होगी, जिन्होंने गेम्स खेले होंगे बहुत पहले से, वो शायद इस जॉनरा को जानते होंगे। ये होता है सर्वाइवल हॉरर जॉनरा। सर्वाइवल हॉरर जॉनरा के में क्या होता है कि बेसिकली आप पूरे थ्रू आउट द गेम सर्वाइव करते हैं और यही आपका एक्सपीरियंस जनरेट करता है। नाउअडेज क्या हो गया है कि सर्वाइवल हॉरर इतना ज्यादा चल नहीं रहा है। सर्वाइवल हॉरर जो है वो इतना ज्यादा चल नहीं रहा है नाउ। आजकल लोग जो हैं वो स्क्विशी स्टफ और बोलना चाहिए क्यूट स्टफ की ओर ज्यादा जा रहे हैं। नॉर्मली जब हम गेम बेचते हैं, जब हम गेम बनाते हैं, हम गेम बेचते हैं, तो हम ऐसे पब्लिशर्स ढूंढते हैं जो कि हमारे गेम जॉनरा को सपोर्ट करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड कि आज की डेट में जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो हमसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें स्क्विशी स्टफ चाहिए, क्योंकि अब्रॉड मार्केट में ये गेम्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। अगर आप हॉरर गेम बनाते हैं, गॉर गेम बनाते हैं, तो इसके लिए आज हम सिमिलरली एक सिंपल सा कैरेक्टर क्रिएट करेंगे जो कि क्यूट होगा। तो शुरुआत करने से पहले हम हमेशा एक सिंपल स्केच क्रिएट करते हैं। आपके कैरेक्टर जो भी आप बनाते हैं वो लाइकेबल होना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपल शेप्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि रीजन होता है इसके पीछे। ओके, सो बेसिकली जब हम सिंपल शेप यूज करते हैं तो क्या होता है, कैरेक्टर जो है वो नाइसली रीडेबल होता है, बहुत आसानी से लोग उसको देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं और फिर इजीली उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। ओके, सो आई एम लाइकिंग दिस कैरेक्टर। हम इसी से शुरू करेंगे। अब इसको हम फेयर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइन आर्ट। लाइन आर्ट जो है ये आपके कैरेक्टर में वेट प्रोवाइड करती है। तो जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो इसकी आउटलाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बहुत ही इजीली ट्रांसलेट होता है वेट कैरेक्टर का। कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होता जाता है इसमें। नाउ लेट्स जस्ट पुट सम कलर आइडियाज। हम कलर आइडियाज डालते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए, समझने के लिए।
थोड़ा सा लाइट्स एंड शेडोज ऐड करेंगे। नाउ बेसिकली शुरुआत में हम लोग प्री प्रोडक्शन में आइडियाज जनरेट करते हैं, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आर्ट कहलाता है। अगर हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं या कोई एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम शुरुआत में सारी की सारी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा गेम जो है वो या हमारा कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से किसी पॉइंट पे या क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शुरुआत में हम बेसिकली उसी में ज़्यादा फोकस करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इस पॉइंट पे जब हम क्या बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम शुरुआत में ही आगे की प्रोडक्शन को विजुअलाइज़ कर लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है वो विजुअलाइज़ेशन पे बेस्ड होती है। जब आप यहाँ पे सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि ओके ये जो आर्ट वर्क हम बना रहे हैं या जो भी हमने बनाया है ये गेम में जब ट्रांसलेट होगा तो कैसा दिखेगा, तो ये शुरुआत में ही हमको पता चल जाता है। नाउअडेज इसके लिए अलग से ही एक डिवीजन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं प्री विजुअलाइजेशन या प्री विज बोला जाता है, जिसमें पहले से ही गेम में जो भी होने वाला है उसको पहले से ही विजुअलाइज कर लेते हैं। खासकर अगर कोई जानता होगा, ये कंपनी बहुत बड़ी है, ब्लिज़र्ड एंटरटेनमेंट, जिसने वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे अभी जब भी इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है, ये काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं शुरुआत में ही प्रीवियस के टाइम में एक फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज जो होता है उसको पूरी तरीके से वो पहले ही बना लेते हैं, एंड देन फिर डिसाइड करते हैं वेदर उनको ये प्रोजेक्ट में जाना है या उसको सेव करना है कि नहीं करना है। ब्लिज़र्ड एंटरटेनमेंट अगर किसी को नहीं पता है तो ये गेमिंग का इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और इसके पास रिकॉर्ड होल्डिंग गेम्स हैं जिन्होंने एक एरा में दुनिया के सबसे महंगे या दुनिया के सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले गेम्स क्रिएट किए थे। स्टारक्राफ्ट, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, इनके ऊपर में मूवीज भी आई हैं, इनके ऊपर में बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉमिक्स भी बनी हैं, और बहुत सारे अलग अलग एनिमेटेड सीरीज वगैरह सब कुछ आई हैं। आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से कि मुझे ये कैरेक्टर यहाँ पे आई लाइक द कैरेक्टर, कि इस कैरेक्टर को लेके मैं आगे बढ़ना चाहूँ। देन व्हाट आई डू इज बेसिकली इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। हम लोग एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट का आइडिया मिले, बैकग्राउंड कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा दिखेगा, इसके क्या बोलते हैं अदर एस्पेक्ट्स जो हैं जैसे स्कोर्स हो गया, या आपका क्या बोलते हैं जीयूआई हो गया। जीयूआई एक टर्म होता है
GUI। बेसिकली ये एक टर्म होता है जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहलाता है। जितने भी टेक्निकल पीपल होंगे वो इसको जानते होंगे। बेसिकली ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आप क्या दिखाते हैं, इसमें आप अपने जो यूजर होते हैं उनको आप स्कोर डाटा, लाइव डाटा या जितने भी डेटा जो होते हैं जो कि यूजर के गेम प्ले के दौरान उसको जरूरत होती है, वो आप क्रिएट करते हैं। उनके लिए भी आप बहुत ही कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होते हैं, इसके लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं। आपने UI UX वर्ड अगर सुना होगा, तो जो मोबाइल ऐप होते हैं या मोबाइल गेमिंग होती है उसमें इस तरीके के आर्टिस्ट होते हैं जो कि इस तरीके के ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करते हैं जिसमें लाइफ जो है या यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का दिखेगा। शुरुआत में कैरेक्टर के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, गेम्स के लिए एनवायरनमेंट के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, बट कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होते हैं उनका काम सारा कुछ रहता है। तो व्हेन आई स्टार्ट माय गेम, मैं शुरुआत में हमेशा कैरेक्टर्स में जाता हूँ पहले, और फिर उसके बाद उस कैरेक्टर से रिलेटेड मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। तो ये बहुत ही फ्लुएंट सॉफ्टवेयर है जो कि मल्टीपल टाइप ऑफ आर्टवर्क्स में काम करता है। आर्टवर्क्स एक टर्म होता है जो गेम के आर्ट स्टाइल को डिनोट करता है कि गेम में किस तरीके का आर्ट स्टाइल होगा। कई लोग जो हैं वो गेम जो है वो यू नो दे वांटेड टू क्रिएट देयर गेम विथ लेस ऑफ द रियलिटी एंड मोर ऑफ द फैंटेसी। तो वो क्या है, फैंटेसी की तरफ ज्यादा जाते हैं। कई ऐसे हैं हु वांट्स टू क्रिएट द हाइपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स, हाइपर रियलिस्टिक गेम ग्राफिक्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अलग आर्टिस्ट लगते हैं हु आर स्पेशलाइज्ड इन 3D सॉफ्टवेयर्स। करंटली हम लोग 2D गेम की तरफ जा रहे हैं। 2D गेम इज अ टर्म फॉर अ 2 डायमेंशनल गेम, जिसमें क्या बोलते हैं, आप केवल एक्स और वाई यानी विड्थ और हाइट की ओर ही गेम खेल सकते हैं, एंड यू डोंट गेट एनी डेप्थ ऑन दैट। जब डेप्थ आ जाती है तो उसको 3D गेमिंग बोला जाता है। 3D गेमिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आई एम गोना शो यू व्हाट सॉफ्टवेयर्स आर देयर।
जरूरी नहीं होता है कि आप डिजिटल सॉफ्टवेयर को यूज करें, लाइक जैसे मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आजकल तो वैकॉम और पेंटैप्स वगैरह आ गए हैं, जिसमें डिजाइनिंग बहुत ही आसान हो गई है। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा डिजाइनिंग क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे गेम का जो ग्राफिक है या गेम का जो लुक है वो किस तरीके का होगा। दैट इज व्हाट वी आर डिसाइडिंग राइट नाउ। और व्हाई दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, बिकॉज जितने चेंजेस होते हैं वो हम यहीं कर लेते हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस कैन नॉट बी अनडन इन लेटर ऑन प्रोग्रेसेस। अगर हम दूसरे प्रोसेस में जाएंगे तो फिर ये प्रोसेस चेंज नहीं की जा सकती। So that is why we have to, decide everything upfront. Okay, my concept art is done for the environment and graphics. अब जब ये कॉन्सेप्ट आर्ट पास आउट हो जाती है, जब पास हो जाती है, हमारा जो आर्ट डायरेक्टर होते हैं, जो गेम बनाते हैं, और ये आर्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं, एक ऐसी पोस्ट होती है जो डिसीजन लेते हैं गेम के लुक को लेकर। तो जो भी हम डिजाइन करते हैं वो आर्ट आर्ट डायरेक्टर के पास जाता है, और आर्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो उसको अप्रूव कर देते हैं। आफ्टर अप्रूवल हमारी प्रोसेस हो जाती है प्रोडक्शन। राइट, प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, इन जितनी भी हमने डिजाइन किया हुआ है, जितना भी आइडिया हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको एक्चुअल गेम के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। नाउ लेट मी जस्ट मूव इनटू अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। एज यू कैन सी, दिस इज द कैरेक्टर विच इज बेस्ड ऑन अवर कॉन्सेप्ट आर्ट। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इलस्ट्रेटर है। इसमें वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपने कैंडी क्रश वगैरह खेला होगा, उसके सारे ग्राफिक्स जो हैं वो इसी में क्रिएट किए हैं। और रिसेंट के जितने भी गेम्स आप खेलते हैं, खासकर मोबाइल में जो आते हैं, ऑल द इन्फिनिटी रन गेम्स, जिसमें आप डायरेक्टली दौड़ते जाते हैं और उसका एंड नहीं होता है, इस तरीके के जो गेम्स होते हैं, उनमें जो ग्राफिक्स बनते हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स ही ज्यादातर होते हैं। सो टू क्रिएट वेक्टर ग्राफिक्स, और आपके जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट है, उसके ऊपर में जब आपको क्रिएट करना होता है, तो आप जनरली इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं, बेसिकली क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज जस्ट टू लेट यू नो कि किस तरीके से बेसिकली ये कैरेक्टर का शेप क्रिएट होता है।
सो इस तरीके से मल्टीपल शेप्स का यूज करके हमने अपना कैरेक्टर बनाया था। बेसिक शेप्स को रखने का फायदा यही होता है कि आप इजीली और जल्दी उसको अचीव कर लेते हैं और इसमें ज्यादातर समय आप एनिमेशन में दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक एनिमेशन स्प्राइट है कैरेक्टर की। एनिमेशन स्प्राइट टर्म जो है वो ये बताता है कि अलग अलग इमेजेस मोशन की क्रिएट करनी पड़ती है और आपका जो सॉफ्टवेयर है जो गेम बनाएगा वो इन चीजों को क्या करेगा, सिंक करेगा, इनको एक साथ यूज करेगा, राइट। हमने यहाँ पे कैरेक्टर का एक वॉक साइकिल बनाया हुआ है जिसमें कैरेक्टर जो है वो वॉक कर रहा है और यहाँ पे हमने एक डेड एनिमेशन बनाया हुआ है कैरेक्टर का कि जब हम यूजर जो है जब इसको मारेगा तो वो इस तरीके का एनिमेशन प्ले होगा। नेमिंग कन्वेंशन जो है वो एक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला टर्म है। नाम कैरेक्टर्स के हर चीज के नाम और कोडिंग में जाते हैं तो ये नाम यूज होते हैं उस पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए। इसी तरीके से हमने प्रीवियसली ऑलरेडी एक कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है जिसमें इसका वॉक साइकिल कुछ ऐसा रहेगा। जब ये हर्ट पोजीशन पे आएगा, जब यूजर को हर्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड जब हम उस पे उसको मार देंगे तो वो डेड पोजीशन उसकी कुछ इस तरीके की रहेगी। जब गेम का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, उसको फेयर करना होता है तो इस तरीके की एक शीट बनती है। ये शीट कहलाती है आपकी गेम एनवायरनमेंट शीट। एनवायरनमेंट की शीट अलग होती है, कैरेक्टर की शीट अलग होती है। जिसमें कैरेक्टर का डाटा होता है वो कैरेक्टर शीट हो जाती है। उसमें कैरेक्टर के जितने एनिमेशन होंगे सबका एक पूरा का पूरा लाइनअप क्रिएट रहता है। उसमें एक लाइन में वो सारे एनिमेशन को अलग 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 फ्रेम बाय फ्रेम शो करते हैं। उसके एक्सप्रेशंस, उसकी एबिलिटीज, वो सारा कुछ उसमें डिफाइन रहता है। वहीं आपका जब एनवायरनमेंट शीट आप क्रिएट करते हैं तो एनवायरनमेंट शीट में बेसिकली गेम के एनवायरनमेंट किस तरीके का दिखेगा। अभी करंटली हम जो गेम बना, तो जब ये शीट बन जाती है तो फिर ये चला जाता है फाइनल प्रोडक्शन में। फाइनल प्रोडक्शन जो होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है, पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन में जो भी कंटेंट बना है। अब डिपेंड करता है, आप प्रोडक्शन में अगर आप 2D और 3D गेम बना रहे हैं, अगर आप 2D बना रहे हैं तो आपका डाटा कुछ इस तरीके का निकलेगा जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये डाटा निकलेगा। और अगर हम 3D में बनाते हैं तो आपको 3D कैरेक्टर्स या 3D इन्वायरमेंट्स इन सब का डाटा वहां मिलता है। तो इसको जब हम पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं तो हमें एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, वो होता है गेमिंग इंजन। Gaming engine is basically a software which compiles the assets created from the for the video game and the coding for that particular assets। यानी कि गेमिंग इंजन जो है ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके एसेट्स जो गेम में आपने बनाए हुए हैं, जस्ट एज इन हियर इट्स अ एसेट, कैरेक्टर इज एन एसेट, एवरीथिंग इज एन एसेट। गेम के अंदर हर चीज एक एसेट होती है। जो ग्राफिकल एसेट्स हैं उसके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, एनवायरनमेंट्स आ जाते हैं, जीयूआईज आ जाते हैं, राइट। और जो बोलना चाहिए मैकेनिक्स, जो गेम मैकेनिक्स के एसेट्स होते हैं उसमें कोडिंग सेक्शन आता है। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, फिजिक्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं अपने गेम के लिए वो सब वहाँ आता है। नाउ यहाँ पे as you can see I had used the term gaming engine। this software is actually अ कंपाइलर। ये क्या करता है, ये दोनों पार्ट को जिसमें आपने
कैरेक्टर बनाए हुए हैं और जो आपका कोडिंग पोर्शन होता है जिसमें आपने कोड किया होता है, इन सबको एक कर देता है। ये हमको एक ऐसा इंटरफेस देता है जिसमें हम इजीली अपने गेम के जो ग्राफिक्स हैं उसको और कोड को मर्ज कर सकते हैं, राइट। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपकी पोर्टिंग में काम आता है। पोर्टिंग क्या होती है? पोर्टिंग बेसिकली अ टर्म जिसमें आप गेम को किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए थ्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पीसी हो गया, कंसोल हो गया, पीसी एज इन पर्सनल कंप्यूटर्स को, या क्या बोलते लैपटॉप्स हो गया, उनके लिए निकालना है। इंडिविजुअल नहीं निकलते, पीसी मतलब सारे कंप्यूटर्स के लिए हो जाता है। कंसोल की बात करें तो आपका एक्सबॉक्स, नाउ इट्स एक्सबॉक्स वन, और PS4 हो गया है, PS5 अभी आने वाला है, राइट। और प्रीवियसली इससे छोटे छोटे कई थे, PS1, PS2, बहुत आप लोगों ने खेला होगा। एंड पीसी कंसोल के बाद एक अलग प्लेटफॉर्म अभी एमर्ज हुआ है जो है मोबाइल प्लेटफॉर्म। खासकर पबजी के आने के बाद इसका मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल गेमिंग्स जो हैं वो इज नाउ अ डिफरेंट जॉनरा जिसमें अलग ही तरीके की कोडिंग की जाती है। मोबाइल के लिए क्योंकि स्क्रीन साइज वगैरह सब कुछ डिफरेंट होता है, टच पैड्स होते हैं जो कि आपको गेम्स के लिए नहीं मिलते। कंसोल्स में आपको कंट्रोलर मिलते हैं, पीसी में आपको माउस इंटरेक्शन के लिए मिलता है, बट मोबाइल्स में आपको केवल टच मिलता है। तो इसके लिए अलग ही तरीके का वर्क होता है। राइट नाउ हमारा जो पोर्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि गेमिंग इंजन जो होते हैं वो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को समझ के गेम को बाहर करते हैं, आउट करते हैं जनता के लिए। नाउ अगर इस पूरी प्रोसेस को हम सम अप करें तो फर्स्ट इज डिजाइनिंग, देन डेवलपमेंट। डिजाइनिंग में आप पूरा गेम ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं, एंड देन फिर डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट में आप इसकी कोड करते हैं, एंड देन फिर आता है पोर्टिंग, यानी गेम किसके लिए, कौन से डिवाइस के लिए निकालना है। नाउ लेट मी टेक यू गाइस इनटू द आवर थर्ड सॉफ्टवेयर, दैट इज जी डेवलप। आज के गेम के लिए हम जी डेवलप इंजन को यूज करेंगे। ये बहुत ही कन्वीनियंट इंजन है। इसमें बहुत अच्छे और क्या बोलते रिसेंटली बहुत ही बड़े बड़े गेम्स भी क्रिएट हो रहे हैं, प्रोडक्शन में हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर्स में मिल जाएंगे। जी डेवलप इंजन जो है ये हमको एक इंटरफेस देता है। जब भी हम इसमें वर्क करना चाहते हैं तो वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आप इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पहले से ही कुछ बने हुए अलग अलग आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपना खुद का भी गेम बना सकते हैं अगर आप इनके एसेट्स को रिप्लेस कर दे तो। बट फॉर आवर सेक हम एक शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं बिल्कुल स्क्रैच से इस गेम को बनाएंगे। सो प्रोजेक्ट की शुरुआत करने पर हमको बेसिकली यहाँ पे एक सीन देना पड़ता है। सीन क्या होता है? जो हमारा गेम लेवल होगा, बेसिकली उसको सीन बोल देते हैं। लेट्स जस्ट रीनेम इट फॉर गेम लेवल। नाउ जब हम गेम लेवल पे आ जाते हैं तो दिस इज द ग्राफिक्स व्हिच इज बीइंग शोड ओवर हियर। तो सबसे पहले हमको हमारे गेम के अकॉर्डिंग इसका साइज तय करना होता है कि किस तरीके का साइज हमको देना है। तो लेट्स जस्ट गो टू प्रॉपर्टीज एंड इसका साइज हम चेंज कर देते हैं।
ओके, आई जस्ट गिवन अ सिंपल टर्म जो मोबाइल गेम्स के लिए यूज होता है। उसमें क्या होता है, आपको विड्थ जो है वो कम रखनी होती है और हाइट जो है वो थोड़ी सी बड़ी रखनी होती है। तो हमने विड्थ जो है वो 1200 दे दी है, हाइट जो है वो हमने करीब 2000 दे दी है। इसको हम 1600 कर देते हैं। लेट्स लेट्स जस्ट गो फॉर 1600। नाउ यू कैन सी कि आपका जो क्या बोलते हैं, जो बाउंडिंग बॉक्स है, जो हमारा क्या बोलते हैं गेम का साइज है, वो पोर्ट्रेट व्यू में आ गया है, जो कि आपके मोबाइल्स के लिए जरूरी होता है। एनीवे, सो ओवर हियर इसको समझना बहुत आसान होता है। यहाँ पे राइट में सारी गेमिंग एसेट्स जो हमने बनाई है वो सब कुछ इधर चली जाती है, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले एक बैकग्राउंड डालते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन मैंने बताया हर चीज एसेट होती है और गेम्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं स्प्राइट्स। तो स्प्राइट्स जो है ये टर्म यूज करता है GDevelop एज अ इमेज फाइल। तो किसी भी इमेज फाइल को इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे स्प्राइट डालनी है। सो लेट्स जस्ट पुट इट अ नेम फॉर BG। एक ऐड करते हैं, गो फॉर दिस इज BG एंड देन ऐड। अब यहाँ पे हम बेसिकली अपने गेम का बैकग्राउंड जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, इसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओपन, ओके, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे वी कैन सी इट ऑन प्रीव्यू कि ये एक्चुअल में कैसा दिख रहा है और गेम इन गेम कैसा दिखेगा। ओके, नाउ जस्ट अप्लाई एंड सी हमारे पास एक एसेट आ गई है। लेट्स जस्ट पुट दिस एसेट ओवर हियर। रिसाइज कर देते हैं इसको। लेट्स जस्ट पुट इट जो हमारी स्क्रीन साइज होती है। सेलेक्ट एंड लॉक द पोजीशन, क्योंकि लॉक करेंगे तो अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो मूव नहीं करेगा। नाउ अब हम ऐड कर लेते हैं हमारे एनिमी को, जो हमने कैरेक्टर बनाया था जिसको हमको यू नो डिस्ट्रॉय करना है। लेट्स मेक इट नेम EN01, क्योंकि हमारा एनिमी रहेगा। अब इसमें एनिमेशंस ऐड कर देते हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। उन एनिमेशंस को हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। लेट्स जस्ट इंपोर्ट दीज एंड here you can actually see कि ये animation कैसा हो रहा है। It's pretty fast. So what I'm gonna do, I'm gonna set it to loop. Loop, as you guys already know, loop का मतलब होता है कि इसको continuously play करते जाएं। And if you can see, it's pretty fast and we need to slow it down. Okay. Now
एक और एनिमेशन हमको ऐड करना होगा, सो ये हमारा वॉक साइकिल एनिमेशन हो जाएगा। एंड इधर पे हम डेड एनिमेशन, जिसमें हम बेसिकली डेड एनिमेशन ऐड कर देते हैं। जस्ट ऐड दिस वन। Make it a loop. Don't give it a loop basically, or okay. Let's just apply. Now this is basically this is now our enemy character. So you can drag drop this artwork और character को आप directly अपने scene में drop कर दीजिए और उसकी initial position you can set. जो भी position आपको वहाँ रखना है you can directly बता सकते हैं आप कि character हमारा पहले कहाँ पे खड़ा होगा. Then, or I would say I could be putting over here. Let's just zoom in and put it over. Now हमको scores चाहिए होगा कि जब भी हम इस पे क्लिक करें तो it will show us the score. तो हम इसमें ऐड करेंगे एक टेक्स्ट फाइल, क्योंकि हमको टाइप करने के लिए टेक्स्ट फाइल लगती है. So we'll gonna be adding this text and text कैसा दिखेगा. तो शुरुआत में it should show like a score and font जो है 80 सेट कर देंगे and we're gonna give it a color of white. बिकॉज व्हाइट में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है, तो किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर में आपको व्हाइट दिखने लगेगा. इनिशियली यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नेम दिया है. ऑब्जेक्ट नेम बेसिकली आपके गेम ऑब्जेक्ट की आईडी होती है जो कि आपको देनी होती है. ये टेक्स्ट के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट से कोई उसका लेना देना नहीं होता. इट जस्ट फॉर द गेम इंजन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज. तो इनिशियल टेक्स्ट यानी कि शुरुआत में टेक्स्ट कैसा दिखेगा, तो दैट इज व्हाट वी आर गोना टाइप ओवर हियर. तो हम इसको कैपिटल में कर देते हैं सारा कुछ. तो दिस इज आवर स्कोर एंड लेट्स गो टू अप्लाई. नाउ व्हेन यू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन सी दैट कि आपका जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. नाउ यू हैव अरेंज्ड you have already arranged this and let's just see कि ये सीन में किस तरीके से दिख रहा है. So you can preview this one from top left corner and you can see कि सीन जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा है. हमारा कैरेक्टर भी वहाँ पे एनिमेट हो रहा है, बट ये पूरा लेफ्ट अलाइंड है, which I do not want. So what I will be doing basically I'm gonna change this setting कि ये सारा कुछ जो लेफ्ट अलाइन हो गया है इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ. गेम रेजोल्यूशन रीसाइज मोड यानी फुल स्क्रीन में गेम किस तरीके से दिखेगा. तो अगर गेम को हम नॉर्मली चेंज विड्थ टू हाइट द स्क्रीन और चेंज हाइट टू फिट द स्क्रीन और विंडो साइज, इसमें से दोनों में से कोई भी चीज हम ऐड करेंगे तो गेम शिफ्ट हो जाएगा. यानी गेम का जो विंडो होगा वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा. करंटली मेरी जो स्क्रीन है पीसी की स्क्रीन लैंडस्केप मोड में होती है, तो इसके कारण से ये एक्यूरेट नहीं बैठता. तो अगर आप इसको नो चेंजेस टू द गेम साइज कर देंगे एंड देन व्हेन you know play it and you can able to see in your preview window कि किस तरीके से ये गेम जो है वो बेसिकली स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे दिखेगा. Let's just take it a bit small. थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं इसको. Right. Now, if we want to provide some codes to this, तो अब जब कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो गेमिंग इंजन जो है आपको पूरा इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इन हियर हमारे गेम लेवल इवेंट्स में यहाँ कोड हम प्रोवाइड कर सकते हैं.
कोडिंग आप सब जानते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। देयर आर टू मेजर सिस्टम्स इन कोडिंग, जिसमें एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आप सी प्लस प्लस में वर्क करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। और एक होता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जो प्रीवियसली वीबी वगैरह में यूज होती थी, स्क्रिप्ट्स में यूज होती थी, बट नाउ आजकल के जो गेमिंग इंजन होते हैं, खासकर 2D गेमिंग इंजन, वो ब्लॉक प्रोग्रामिंग और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में ज्यादा बेस्ड होते हैं। तो हमारा GDevelop 5 जो है, ये एक्चुअली में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप हर चीज का इवेंट बताते हैं। जैसे कोई भी चीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर गेम शुरू कर रहे हैं, अगर हमारा गेम कोई शुरू हो रहा है तो हम उसमें ये एक इवेंट होता है कि गेम जब स्टार्ट हुआ तो ये एक इवेंट हुआ। तो आप यहाँ पे इजीली इन इवेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हो जाती हैं, और इन्हीं कंडीशंस का एक एक्शन होगा कि अगर गेम स्टार्ट हुआ तो एक्शन क्या होगा, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो एट द बिगनिंग ऑफ द सीन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि शुरुआत में सबसे पहले हमारा कैरेक्टर जो है, या हमारा स्कोर जो है वो 0 हो जाए, या हमारा कैरेक्टर जो है वो वहाँ पे इट इज देयर, वो खड़ा ही है वहाँ पे, तो हम इस पे एक इवेंट देंगे। वो इवेंट रहेगा, क्लिक इवेंट रहेगा, कि जब हमारा कैरेक्टर जो है उस पे हम क्लिक करेंगे तो उसका एनिमेशन चेंज होगा। तो सबसे पहले मैं एक और इवेंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन रहता है माउस टच का। आप यहाँ पे बता दीजिए कि कौन सा माउस या कौन सी बटन आपकी माउस की आपने प्रेस की हुई। द कर्सर टच इज ऑन द ऑब्जेक्ट, कि अब मेरा माउस जो है, जो मेरा कर्सर है, वो उस ऑब्जेक्ट पे है कि नहीं। ये कंपैरिजन टेक्स्ट होता है, ये कंपेयर करेगा। सबसे पहले देखेगा कि मेरा माउस जो है वो उसकी लेफ्ट बटन दबी है कि नहीं, और अगर उसका जो कर्सर है वो कैरेक्टर पे होगा तब क्या होगा। देन आप कैरेक्टर का एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट चेंज द एनिमेशन फर्स्ट। यहाँ वैल्यू बतानी होती है, तो जो एनिमेशन की वैल्यू होती है वो नाम से डिनोट नहीं होती है, इवन दो आप उसका नाम यहाँ यूज कर सकते हैं, बट ये जनरली वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट होती है, जैसे जैसे कि 0 1 2 इसके थ्रू यूज होती है। तो आई एम जस्ट पुटिंग दिस वन। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं, और लेट्स जस्ट सी कि जब प्ले करते हैं एंड हम क्लिक करते हैं तो उसका एनिमेशन वर्क करता है, राइट। लेकिन वो वापस 0 लेवल पे नहीं आता, क्योंकि इसी में गेम एंड हो जाता है। अगर आप क्लिक करेंगे वो मर जाएगा, तो फिर से हम खेलने की हमारी कोई कंडीशन नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके थोड़े समय बाद ये फिर से रिवाइव हो जाए। तो एट द बिगनिंग ऑफ द सीन सबसे पहले हमको इस कैरेक्टर का एनिमेशन सेट करना होता है कि एनिमेशन होगा कहाँ पे। बाय डिफॉल्ट ये 0 पे ही होता है, बट अगर आप 0 वैल्यू पहले से डिफाइन कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम गेम फिर से ऑन होता है तो वो सेम वैल्यू पे नहीं जाएगा।
नाउ गेम में रिवाइव देने के लिए जब ये कैरेक्टर जो है वो रिवाइव होगा, तो अगर ये रिवाइव देना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक टाइमर देना होगा। ये टाइमर्स क्या होते हैं, ये वो कंडीशंस होती है जो टाइम को नोट करती है, यानी कि 1 सेकेंड हो गया या 2 सेकेंड हो गया या 3 सेकेंड हो गया तो क्या इवेंट हो, अगर 2 सेकेंड पूरा हुआ है तो क्या इवेंट हो या क्या एक्शन होना चाहिए, इन चीजों को ये डिनोट करता है। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टाइम इवेंट को या टाइमर को क्रिएट करूंगा। टाइमर क्रिएट करना बहुत आसान है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर एक्शंस में इनको क्रिएट कर सकते हो। So what I'm gonna do, I'm gonna start a timer and I'm gonna give it a name. Revive en। हमने जो टाइमर है उसका नाम रिवाइव en रखा हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो 0 वैल्यू पे आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट ये टाइमर जो है वो पॉज रहेगा। लेट्स जस्ट पॉज दिस टाइमर। शुरुआत में ये रिवाइव नहीं करेगा, ये रिवाइव तब करेगा जब आप इसको क्लिक करेंगे, हमारे जो कैरेक्टर है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये टाइमर जो है वो रीसेट होगा। रीसेट होगा तो क्या होगा, जब रिवाइव की वैल्यू 1 सेकेंड हो, यानी कि मरने के बाद 1 सेकेंड बाद वो फिर से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे पहुंच जाए। जैसे ही 1 सेकेंड हो तो आप बेसिकली इसका जो एनिमेशन है वो फिर से 0 पे पहुंच जाए। तो नाउ गेम लेवल पे जब हम इसको प्ले करेंगे तो नाउ इट्स नॉट वर्किंग देयर। तो बेसिकली हमको देखना होगा कि एनिमेशन की वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू है। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन जरूर हुई है, वो ये कंडीशन है कि ये जब हम एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो दोबारा फिर से एग्जीक्यूट नहीं होती है। यानी एक बार अगर ये इवेंट हो गया है तो गेम के लिए ये इवेंट यस हो गया है, ये ट्रू हो गया है, ये वैल्यू हमेशा ऑन रहेगी। तो इसको ऑफ करने के लिए हमको यहाँ पे एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी एंड दैट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो होल्डर्स होते हैं जो आपकी बताई हुई वैल्यूज को होल्ड करते हैं। अब आइदर ये स्विच भी हो सकते हैं, यानी 0 1 ऑन ऑफ, इस तरीके से स्विच भी हो सकते हैं, और आइदर ये रिटर्न वैल्यूज भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक सीन वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। स्विच 0 हम, और इसकी हमने वैल्यू 0 सेट कर दी है। और यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर हमारे वैल्यू की या वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 है
तब ये एक्शन हो। वो स्विच लगाने से अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया एक स्विच है जो कि एल्गोरिदम्स का यूज करके बनता है, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रिगर वंस व्हाइल ट्रू, यानी कि जब ट्रू हो तो एक ही बार इसको एग्जीक्यूट करें। Right. Hello, Ankit sir. How much time you will take now? Yeah, it Hello, sir. will, yes, sir. I won't be taking much time. Okay. Just give me a few more minutes and I'll be winding this up. So guys, normally when you create all these, all the codes and everything, जो आप इसको create करते हैं, let's just complete this score event first. जो हमारा score event है, इसको हम complete कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हम बेसिकली एक स्कोर के लिए जो हमारा वैल्यू है उसके लिए एक वेरिएबल बना देते हैं।
राइट, सो हमारा जो पॉइंट है वो चेंज हो गया है। राइट, तो हमारा वेरिएबल यहाँ काउंट शुरू हो गया। So whenever you click, it will be giving you the score. Okay. अब guys, it's a fact कि गेम जब आप क्रिएट करते हैं तो it takes a lot of time, जो कि जिसमें आप डिजाइन भी करते हैं, कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, बनाते भी हैं, कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि 1 घंटे में इसको दिखाना थोड़ा सा टाइट शेड्यूल हो जाता है। बट स्टिल जब ये गेम यहाँ बन जाता है तो उसके बाद इसकी पोर्टिंग हो जाती है। लेट मी शो यू गाइज अ बिट समथिंग जो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को एक अच्छा खासा टाइम देते हैं तो यू गाइज कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस। रिसेंटली आई हैड वर्कड ऑन अ गेम जिसको द थीफ नाम का गेम है। ये बेसिकली आपको यूट्यूब में भी कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगा। दिस गेम इज एक्चुअली टुक मी अबाउट 7 months। इस गेम को क्रिएट करने में मुझे 7 महीने लगे थे। इसमें बहुत ही ज्यादा पिक्सल आर्ट वगैरह क्रिएट हुई है। एंड यू कैन सी कि ये गेम जो है सिमिलरली आपका जी डेवलप में ही बना हुआ है। इट्स अ प्लेटफॉर्मर गेम जहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है और आर्टवर्क जो है ये पूरा फोटोशॉप में क्रिएट हुआ है। It took me about 3 months to create the whole artwork of the particular game. And it's a 4.5 out of 5 from Rock Bytes game. इसको 4.5 की रेटिंग मिली है। You guys can search it on Google as well. आपको Google में भी ये मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा जी डेवलप इंजन पे ही बना हुआ है। Okay, so thank you so much guys for having me here. मुझे you guys gave me a good opportunity to tell you something about my field, and I thoroughly thank you Hemant sir and the team for giving us this opportunity to showcase our skills and tactics. Thank you so much sir. So I'm winding up this session. Anybody? If there is any query, Anybody is continuing from your team? Anything else? Can you tell me, sir, the students, the various softwares or technology used for animations and gaming designing and porting, etc.? Just names. yes sir. There are multiple softwares which normally we teach in our institute as well, जो कि 3D 2D गेम्स बनाने के लिए यूज होते हैं। तो अगर कोई 2D गेम बनाना चाहता है तो जी डेवलप सीखें, या क्या बोलते हैं गोडॉट इंजन जो है रिसेंटली बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है फॉर 3D गेम्स एंड 2D गेम्स, दोनों बना लेता है वो। एंड रिसेंटली जो सबसे ज्यादा मास ऑडियंस यूज करती है वो है यूनिटी। यूनिटी गेमिंग इंजन है जो कि 3D और 2D बनाता है। वी टीच दैट इन आवर इंस्टीट्यूट एज वेल। एंड अनरियल इंजन इज देयर जो कि बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए होता है, यानी कि जिसमें जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हाइपर आते हैं in our institute, which we teach everything there. इसमें डिजाइनिंग से लेकर ग्राफिक्स और कोडिंग्स एंड
क्या बोलते हैं, इवन सेलिंग आउट के भी पोर्शन रहते हैं उसमें, जिसमें आप ना ही केवल गेम बनाते हैं और उसकी कोड करते हैं, बल्कि उस गेम को आप पर्टिकुलर किस तरीके से इंडस्ट्री में सेल आउट भी कर सकते हैं, ये भी सीखते हैं आप। तो देयर इज अ थरो कोर्स फॉर 6 to 7 months इन आवर इंस्टीट्यूट। फर्दर इंक्वायरी के लिए आई विल आस्क माय टीम to send the information in the chat section regarding the courses. Yeah, Agar yeah, they are sending. Yes. yes One sir, I more think thing, here, that is, what are the career opportunities in this field? yes, yeah, there are multiple opportunities as well. ये field जो है, अगर मैं इसमें opportunities की बात करूं, and the post and the job scope is there, so there are 60 plus job posts are there in all the 3 productions. If we talk about there are 60 plus career options are there basically. अगर मैं बात करूं कि there is a pre production, तो pre production में ही आपके 10 से 12 career scopes निकल जाते हैं, where the character designer is there who only goes into the character designing. There are environmental designers and all the art style designers are also there, who are going to decide the different type of artworks. As you can see in this game, I had created a very different type of artwork which was not related to our today's session. This is pixel art. तो ये artwork जो हैं, ये अलग-अलग artist design करते हैं. I had also created multiple artwork designs. जब game बनाने से पहले I had spent a lot of time, approximately 3 months I had spent for the concept thing. So बेसिकली जब ये हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए भी अलग पोस्ट होती हैं। आर्टवर्क डिजाइनर्स जो हैं, वो पूरे आर्ट स्टाइल में ही ट्राई करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को क्रिएट करने का, ताकि हमको आइडिया मिल सके कि डिफरेंट जॉनरा क्या होता है। प्रोडक्शन में भी जब हम जाते हैं, जब हम 2D और 3D प्रोडक्शंस में भी जाते हैं, तो देयर आर मल्टीपल आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 6 फील्ड्स आर देयर, 6 कैरियर फील्ड्स आर देयर, जिसमें आप कैरेक्टर मॉडलिंग आर्टिस्ट बनते हैं। Let me show you just a bonus thing. Okay, right now I do not have that. Basically 3D वर्ल्ड में भी जो क्या बोलते हैं आर्टिस्ट होते हैं, उसमें 6 अलग फील्ड होती है। 2D आर्टिस्टों की अलग फील्ड होती है। तो अगर करियर स्कोप्स की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस करियर स्कोप आपको इस फील्ड में मिलते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अलग होते हैं। नाउ केवल गेमिंग्स में ही इतने ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद फिर इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का, इन्हीं एक्सपर्टीज का यूज मूवीज में भी किया जाता है, इन्हीं एक्सपर्टीज का यूज ग्राफिक डिजाइनिंग में किया जाता है। दीज आर द 3 लीडिंग इंडस्ट्रीज, जो कि सबसे ज्यादा हाईली पेड इंडस्ट्री हो गई है। गेम्स तो आई थिंक आप सब एग्री करेंगे इस चीज पे कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडस्ट्री में से एक हो गया है। मूवीज तो ऑलरेडी थी, बट नाउ डेज खासकर जब पब्लिक गेमिंग आने लगी है, जैसे आप देख रहे हैं पबजी हो गया, आपका फ्री फायर हो गया, या आपके क्या बोलते हैं, अभी फौजी भी आया है। आई डिडंट प्ले दैट गेम, बट अब ये जॉनरा जो है वो इंडिया तक में भी बहुत ज्यादा फैल चुका है। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि गेम्स जो हैं, जो शुरुआत में क्रिएट होते हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड के लिए होते हैं, बाद में सेल आउट सेकेंड वर्ल्ड में होते हैं, लास्ट में थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, जिसमें हम लोग अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, ये सेक्शन होता है। बट अब हम ही इतना मार्केट जनरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री में कि अब हम भी सेकेंड वर्ल्ड पे आ गए। तो बेसिकली इंडिया पे भी अब इंडिया के लिए भी सोच के गेम्स बनने लगे। ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, खासकर गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। बट मूवीज में भी आप इन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, एंड सो ऑन। आप क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका मेडिकल फील्ड हो गया, सिमुलेशंस के लिए गेमिंग इंजन्स का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि मिलिट्री सिमुलेशंस के लिए या स्पेस सिमुलेशंस के लिए, तो ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली में, ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये बेसिकली वहां पे भी यूज होते हैं। तो अगर हमारी फील्ड में कोई इस चीजों का नॉलेज करता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको डिजाइनिंग में ही रहे, आप अपने डिफेंस के लिए भी जा सकते हैं, या क्या बोलते हैं मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप इन सिमुलेशंस का यूज करते हैं।
Yes, sir. Thank you Okay, for nice. thank you so much. Thank you so much, sir, for having us. Yeah. Okay. Shall we wind up now? Is there any questions from student side? They can put the questions in chat box. Ankit sir, you can start sharing Yes. your screen. Yes, I'll stop my screen. Okay. Thank you. Students, the contact details are provided in chat box. You can use it afterwards for your further interest, or you may contact to me also. I will guide you. Manjusha ma'am, you can proceed. Yes, sir. Am I audible and is my voice clear? Yes, ma'am. Clear. Okay. So it's my pleasure to propose vote of thanks for today's session on topic game designing. So at very first, I would like to thank our today's resource person, Mr. Ankit Martin sir, for sharing his knowledge with us and making a tour of an animation world to our students as well as faculties. Definitely, our students has increased an interest in animation and game development. I am grateful to Mr. Nirmalesh Verma, sir, the director of MAC Raipur and naishiksha.com, for accepting our invitation and giving us permission to conduct this seminar for our students. I would propose my thanks to Srishti ma'am, Akanksha ma'am, Shivendra sir, Twinkle ma'am, and Hardik sir for conducting and coordinating this activity with us. My sincere thanks goes to entire support team of MAC Raipur for the success of this seminar. I would also like to thank our management for supporting us to conduct such an informative and beyond curriculum activities so that students can think beyond for their careers. Finally, I am thankful to Professor P.T. Kadve sir, Principal, KK Polytechnic Nashik, Head of Computer Technology Department, Professor Katkade sir, Professor H.M. Gaikwad sir, coordinator of this session, and the whole coordinating team of our department to make this session successful. Thank you all.